Hello and welcome to the Radar Talks, which is your go-to health and fitness channel and a podcast, जहाँ पर we discuss about the different health issues, different healthy lifestyles, weight gain, weight loss, how to reverse diseases, and everything. So first of all, let me introduce myself to you all. I am definitely a health and nutrition life coach, and today I'll be hosting this podcast, and then accompanied with my three amazing and highly experienced and qualified health coaches from the health and fitness industry. So we have Abhishek, who is the holistic health coach. Hi, Abhishek. Hi everyone. Hi Daphne ma'am. Hi. We have Rahul, who is strength and fitness transformation coach. Hi, Rahul. Hello. And we have Rajiv, who is a fitness transformation coach. Hi, Rajiv. Hello, ma'am. Hello, everyone. Okay, so after this introduction, I would like to tell you all कि आज का हमारा topic of discussion है the general myths around the health and fitness industry. So, but before we dive into the topic, I would request all our listeners to kindly subscribe to our podcast channel so that आप हमारा कोई भी episode ना miss करें. Okay, so let me start off with our question answer round, which is actually more of a discussion. तो सबसे पहला मिथ जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहूंगी वो बहुत ही कॉमन मिथ है और हम सब ने ही सुना है कहीं ना कहीं और मी एज अ गर्ल ऑल्सो मेरे दिमाग में भी कहीं ना कहीं ये एक मिथ कहीं पे था कि लड़कियों को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए बिकॉज उससे मसल्स बिल्डअप हो जाती हैं, बहुत ही मैस्कुलिन टच आ जाता है। तो ये तो मिथ है हमारा जो सब जगह पे बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है। ये कितना ज्यादा इसमें कितना फैक्ट और कितना मिथ है। आई वुड लाइक टू आस्क अभिषेक दिस क्वेश्चन फर्स्ट क्योंकि मैं बता दूं सबको कि अभिषेक वही थे जिन्होंने मुझे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से इंट्रोड्यूस कराया और पहले मेरे दिमाग में भी यही मिथ था कि मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करूंगी तो मेरी मसल्स बिल्डअप हो जाएगी एंड ऑल। तो Abhishek was the one who introduced me to strength training. So I would like Abhishek to answer this question first. ओके सो देखिए जैसे कि बात हो ही चुकी है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या क्या एक्चुअली क्या है कि कोई भी जो वर्कआउट होता है या कोई भी एनी काइंड ऑफ फिटनेस एक्सरसाइज इज नेवर अ जेंडर स्पेसिफिक। ठीक है, वो किसी एक जेंडर के लिए नहीं बना है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो कि बहुत रफ एंड टफ दिखती है तो हम लोग सोचते हैं इट्स मेड फॉर मेंस और फॉर बॉयज, बट एक्चुअली ऐसा है नहीं। anyone and everyone can do strength training and same goes with any Okay. kind of exercise। ठीक है, so there is no gender specific exercise। अभी जिस जैसे कि आपने बताया कि मिथ जो है कि लोग ये सोचते हैं, स्पेशली फीमेल्स ये सोचती हैं कि दे विल बिकम मोर मस्कुलर, दे विल बिकम बिग इन साइज। तो Hmm. it is completely dependent on the hormones what both individual have। men have different hormones and female have different hormones, right? So based on that hormones और हमारे physical structures का डिपेंड करता है। सो इट डज नॉट मैटर आप क्या ट्रेनिंग कर रहे हो, कैसा ट्रेनिंग कर रहे हो। इट completely डिपेंड्स ऑन हॉर्मोन्स हमारे कैसे। सो अ फीमेल विल नेवर बी एबल टू बिकम एज बिग एज अ मैन because of the hormone testosterone until and unless she administer on herself from an external source। तो जैसे कि आपने देखा होगा काफी फीमेल बॉडी बिल्डर्स जो हैं, सो दे टेक ऑल दोस काइंड ऑफ हॉर्मोन्स बिकॉज उनकी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती Okay. है दैट अमाउंट कि आपके मसल्स को एज अ मैनली ग्रो करे या फिर इट लुक्स बिगर। ठीक है, तो इट इज हंड्रेड Okay. परसेंट मिथ। So you will never grow that kind of muscle. Yes, but strength training will definitely increase your strength. It will tone your body. It will help to get rid of the excess fat you have. It will increase your metabolic rate. So in a way, it is very much, very, very, very good for women, especially to start doing strength training or any kind of exercise. So I hope this myth Okay. is clear, right? Yeah, right. But then Absolutely correct. राहुल एंड राजीव जैसे कि आप दोनों ही फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन कोचेस हैं तो आपके पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स आते होंगे और स्पेशली फीमेल क्लाइंट्स आते होंगे जिनके दिमाग में भी एक ब्लॉक है कि नहीं ना हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करनी है। तो आप ऐसी चीजों को ऐसे मिथ्स को कैसे डील करते हैं या आप अपनी फीमेल क्लाइंट्स को किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि नहीं सिर्फ कार्डियो नहीं करना है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करनी है। सो हाउ डू यू बेसिकली क्लियर देयर माइंड ब्लॉक? राजीव। ओके मैम। थैंक यू मैम। बताना चाहूंगा मैम, एक ना स्पिरिचुअल एग्जाम्पल से मैं बताना चाहूंगा।
शिव एंड शक्ति। देर आर टू हम्म, थिंग्स, शिव एंड शक्ति। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करें तो देर आर टू टाइप्स ऑफ हार्मोन, टेस्टोस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। ओके। ओके, तो हम्म, एस्ट्रोजन जो हो गया वो फीमेल के अंदर ज्यादा प्रोड्यूस होता है, टेस्टोस्टेरॉन मेल में ज्यादा होता है। तो टेस्टोस्टेरॉन का जो फंक्शन है, जो उसका मेन जो रिस- काम जो है टेस्टोस्टेरॉन का, वो हो गया आपका मसल को बिल्ड करना। हम्म, अब जो एस्ट्रोजन है वो मेल में भी होता है, टेस्टोस्टेरॉन फीमेल के अंदर भी होता है। बस फर्क ये होता है कि फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन लेवल है वो हाई होता है, मेल में टेस्टोस्टेरॉन है वो हाई होता है। तो मैं, जितनी भी फीमेल्स आती हैं जिम में, वो ये बोलती हैं कि सर मेरे को ना वेट ट्रेनिंग नहीं करना, मेरे को बाइसेप कर्ल है, आर्म्स हम्म, का वर्कआउट नहीं करना। ठीक है, और फीमेल सबसे ज्यादा फोकस करती है, अगर वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती भी है ना, तो वो ज्यादा फोकस करती है लोअर बॉडी पार्ट पे। स्क्वाट्स हो हाँ, गया, राइट। कन्वेंशनल डेडलिफ्ट हो गया। हम्म, ओके, हम्म, तो मैं हम्म, फिर उनको ऐसे समझाता हूँ कि हार्मोन का एक अपना काम होता है। ठीक है, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो, आप बाइसेप कर्ल कर रहे हो, उससे आपका आर्म का साइज नहीं इंक्रीज होएगा, क्योंकि आपकी बॉडी एस्ट्रोजन से ज्यादा है। जो ओके। टेस्टोस्टेरॉन मेल के अंदर हाई होता है तो उनका बाइसेप है वो ज्यादा इंक्रीज होएगा, मसल मास है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होएगा। एस्ट्रोजन का काम होता है फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करना, ज्यादा इंक्रीज करना, फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी। इसीलिए फीमेल के अंदर आप ज्यादातर देखेंगे तो फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी उनकी बहुत ज्यादा अच्छी होती है एज कम्पेयर टू बॉयज। ठीक है, राइट, लड़के राइट। ज्यादा स्टिफ होते हैं। तो दूसरा गलती फिर उनको मैं ये चीज भी समझाता हूँ कि फीमेल्स ना, आप लोगों ने जैसे देखा होगा, राहुल सर, अभिषेक सर, जिम्स वगैरह में फीमेल आती हैं जिम में, उनको एरोबिक हो गया, जुम्बा हो गया, ये सब एक्टिविटीज करना ज्यादा पसंद होता है। ठीक है, हम्म, एरोबिक एक्सरसाइजेस करना बहुत ज्यादा हम्म, पसंद होता है। तो मैं उनको यही चीज समझाता हूँ कि अगर आप एरोबिक कर रहे हो ठीक है, वो गलत नहीं है, लेकिन डेली डेली अगर आप जुम्बा कर रहे हो तो इट्स अ जंपिंग मूवमेंट। ठीक है, आप जंपिंग मूवमेंट कर रहे हो तो सोचो कितना ज्यादा आपके जॉइंट्स जो है वो अफेक्ट कर रहे हैं। आपके ये नीज हो गए, लोअर बैक हो गए, लंबर वर्टेब्रा, ये बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं। तो इसलिए हमें प्लायोमेट्रिक जो मूवमेंट्स होती है, जंपिंग मूवमेंट्स है, वो वीक में वंस या ट्वाइस करना चाहिए। ठीक है, और अगर आप ओके। जैसे जुम्बा कर रहे हो, एरोबिक्स कर रहे हो, तो वो ना कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज ज्यादा हो गया। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है कि आप मसल मास को और ज्यादा डिप्लीट कर रहे हो, मसल मास लॉस हो रहा है। ठीक है, हम्म, तो इसीलिए हमें ना फिटनेस के हर कंपोनेंट पे काम करते रहना चाहिए। पर जो मेन, जो हमारा, जो आपने जैसे कि क्वेश्चन किया कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। थैंक यू मैम। ओके, सो राहुल, आपका क्या कहना है इस बारे में? थैंक यू जैकी। आई वुड लाइक टू मेंशन है कि ये जो नोशन है सबसे पहले वो इसलिए स्टार्ट हुआ बिकॉज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कम्स फ्रॉम अ कम्युनिटी ऑफ पीपल who spend most of or all of their time in gym, which happens to be bodybuilders or powerlifters or whatsoever. So जब जब जिम कल्चर की शुरुआत हुई थी तो उसको उसी नजरिए से प्रमोट किया गया था, उसी तरीके से मार्केट किया गया था। एंड नॉट जस्ट फीमेल्स बट मेल्स में भी एक सेक्शन है जो जब आप जिम वर्ड मेंशन करते हैं तो उनको हम्म, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर या सिल्वेस्टर स्टैलोन जैसे फिगर्स ही दिखते हैं। हाँ, राइट। जहाँ बात फीमेल्स की आती है, मैं हमेशा ये मेंशन करता हूँ किसी भी फीमेल को कि आप प्लीज एक दिन मेरे साथ जिम करिए और नेक्स्ट मॉर्निंग यू आर नॉट गोइंग टू वेक अप एज आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर और सलमान खान। ओके, इट डजंट हैपन लाइक दैट। ठीक है, ओके। एंड क्यों सिर्फ फीमेल्स का ध्यान इस तरफ नहीं जाता है इसका, अगेन सिर्फ फीमेल्स नहीं, काफी सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ कार्डियो पे ही मेंशन करते हैं बिकॉज most of the time what we are trying to focus on is the number of calories we can see or we can calculate during that particular hour. और वो हमें दिखता है एक ट्रेडमिल पे या जुम्बा में या स्पिनिंग में या एनी काइंड ऑफ कार्डियो सेशन में is it's on the higher side if you compare it to weight training. वेट ट्रेनिंग में उस एक घंटे के दौरान इतनी कैलोरीज बर्न नहीं होती, तो उसको एज अ बेटर ऑप्शन फॉर रिटर्न ज्यादातर लोग
उसको चूज करते हैं, एंड ऑफ कोर्स वो एक इजी मेथड ऑफ ट्रेनिंग है, इन कंपैरिजन टू वेट ट्रेनिंग. But if you look at the overall calorie burnout which happens during the next 23 hours, तो वो आपका हमेशा on the elevated side रहता है, and that's what we call having a better or boosted metabolism. तो मेटाबॉलिज्म. यही एक चीज है जो इसको सबसे ज्यादा कारगर बनाती है. यू नो अभी अगर हम बात करें, वी आर गोइंग थ्रू काइंड ऑफ अ obesity epidemic, not just in our country, but overall. So ये एक बड़ी इजी से समझने वाली बात है कि अगर आप सिर्फ लोगों के मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर सकें just by 50%, you will see more than half of the population, they'll get rid of their disease. And the best way to boost your metabolism is to train your muscle, because एक स्टडी है जो कि ये शो करती है कि एक ऐसा इंसान जो बहुत कम खाता है, सिर्फ वॉक करता है, वही रेगुलर कार्डियो एक्टिविटी करता रहता है, उसका मेटाबॉलिज्म वर्सेस एक मॉडर्न काउच पोटैटो का मेटाबॉलिज्म कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है उन दोनों के मेटाबॉलिज्म. तो आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप अपनी भूख मार रहे हैं, बहुत कम खा रहे हैं, और घंटों वॉक कर रहे हैं, घंटों कार्डियो कर रहे हैं, जो कि एक्चुअली कार्डियो होता भी नहीं है. लोगों को कार्डियो का भी मतलब अभी ठीक से पता नहीं, बिकॉज आप एक ऐसे पेस पे कार्डियो कर रहे हैं वेर यू आर Right. फीलिंग टू कंफर्टेबल, यू कैन नॉट कॉल इट टेक्निकली अ कार्डियो. ओके, सो सीखने वाली बात यह है कि द ओनली फॉर्म ऑफ एक्टिविटी विच रियली हेल्प्स टू boost up your metabolism, to feel good, to defy aging, and literally whatnot, is strength training. Okay. Okay. That was insightful. Just But just to add to Rahul's point, अभी राहुल जैसे बता रहा, तो मैं जस्ट एक चीज बता रहा हूँ, एक वर्ड. सो मे बी जो अगर जिन्होंने ये पॉडकास्ट सुना तो वो शायद राहुल से इस बात से होंगे कि हम कार्डियो गलत करें तो हम क्या गलत करें, क्योंकि अभी राहुल ने पॉइंट आउट किया कि वो दे आर नॉट right, एक्चुअली right, डूइंग देयर कार्डियो, दे आर जस्ट गिविंग अ right. वर्ड. सो मे बी दे कैन सर्च एंड दे माइट आस्क देयर ट्रेनर्स, वो उनको हेल्प कर सकते हैं. दैट इज अ टारगेट हार्ट रेट. ठीक है, तो या हमेशा हमारे टारगेट हार्ट रेट पे वर्कआउट करना चाहिए, बट वो उसका एक प्रोसेस होता है कैलकुलेशन का, एंड देन कैलकुलेशन थिंग्स करके बिल्कुल. थिंग्स कंसिडर्ड कि क्या आपकी Hmm. फिजिकल एक्टिविटी, क्या अभी एज है, क्या हम्म. अभी आपका नॉर्मल हार्ट रेट है. सो बेस्ड ऑन दैट कैलकुलेशन योर टारगेट हार्ट रेट इज कैलकुलेटेड, एंड देन यू हैव टू वर्क ऑन दैट. वो एज के साथ बिल्कुल. साथ और एक्टिविटी के साथ साथ बदलता है. तो जस्ट एक पॉइंट की मान लो Yeah. जो इस पॉडकास्ट को सुन रहे होंगे, तो दे कैन स्टार्ट डूइंग एटलीस्ट समथिंग न्यू और प्रॉपर कार्डियो एक्चुअली. Right. 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 बिल्कुल, But फैक्टर्स जैसे हमेशा क्या? होते हैं. फैक्टर्स हमेशा होते हैं. लेट्स से यस. एमएचआर इनटू as a इंटेंसिटी as a परसेंट trainer you get to deal with प्लस people who आरएचआर. have medical history, Hmm. with challenges होते हैं. हर किसी का फिटनेस लेवल एक जैसा नहीं है, कोई बिगिनर है, कोई इंटरमीडिएट है या एडवांस है. इवन एडवांस लेवल पे भी if people are not used to that kind of cardio, so things they go as per the requirement. Right. राइट, राइट. पर जैसे कि अभी राहुल ने और राजीव ने हमें बताया अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में, तो इसी में से एक और चीज भी मुझे समझ में आई कि बहुत से लोगों को ये मिथ भी बहुत ज्यादा होता है, जैसे कि अगर हमें वेट लूज करना है, जैसे जिनका सिर्फ टारगेट ही वेट लूज करना होता है, तो उनको लगता है कि नहीं, हम सिर्फ कार्डियो करके ही वेट लूज कर पाएंगे, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से वेट रिड्यूस नहीं होगा. और जैसे कि अभी राहुल ने बोला ना कि हमें लगता है कि ट्रेडमिल पे दौड़ रहे हैं तो हमें कैलोरीज काउंट हो जाती है हमारी, कि अच्छा इतनी कैलोरीज हमारी बर्न हो चुकी है, तो हमें लगता है कि बहुत इफेक्टिव है कार्डियो, और कार्डियो ही करना है, तब जितना दौड़ेंगे उतना ज्यादा हमारा वेट रिडक्शन होगा. तो इस मिथ पे क्या आपका क्या कहना है कि क्या सिर्फ कार्डियो से ही वेट रिड्यूस हो सकता है, या फिर इट इज अ बैलेंस ऑफ बोथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड वेट ट्रेनिंग, या फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन कार्डियो? राहुल, मेरा, हाँ बोलो. राहुल ने वैसे ये बात मेरे ख्याल से पहले एड्रेस कर दी थी अपने टॉक में कि एक्चुअली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वो. क्योंकि देखिए, एक एरोबिक जोन की एक्सरसाइज होती है, एक एनारोबिक जोन की एक्सरसाइज होती है. फैट ऑलवेज बर्न्स इन एरोबिक जोन. एनारोबिक जोन का इफेक्ट आता है पोस्ट एक्सरसाइज, जो कि राहुल ने बोला कि आपका मेटाबॉलिक रेट, आपका मेटाबॉलिज्म. जो आपने 1 घंटे आपने वर्कआउट कर लिया, उसमें तो आपने जो किया वो किया.
तो एनारोबिक इफेक्ट आपको वो पोस्ट वर्कआउट आएगा जो विद इन 23 आवर्स जो right. आपका रहता है, विच इज कॉल्ड ईपॉक। हम्म. ठीक है। कार्डियो Epoch. इज इन एरोबिक जोन। एरोबिक जोन मतलब कार्डियो इज नॉट ओनली वॉकिंग ऑन ट्रेडमिल और रनिंग, एनी लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटी, any long duration activity which goes beyond like 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, continuous. It should not be a break. So that can be हम्म. considered as a cardio. So if you are like, see, there is a difference. जैसे मैंने बोला कि लॉन्ग ड्यूरेशन, सो अब लोग हम्म. सोचते हैं कि अगर वो दौड़ लेते हैं, ठीक है, सो दौड़ना, jogging and running or sprinting and marathon, they are both two different things. Different. Sprinting is short run विद मैक्सिमम कैपेसिटी, मतलब आपकी जितनी कैपेसिटी है पीक कैपेसिटी से आप उसको दौड़ जाते हो, एंड दैट इज 100 मीटर लेट्स से, ठीक है, तो दैट इज एन एनारोबिक एक्सरसाइज, हालांकि वो भी दौड़ ही रहा है। और मैराथन विच इज और लॉन्गर ड्यूरेशन, मतलब वो 21 किलोमीटर, 45 किलोमीटर, डिपेंडिंग ऑन हाफ मैराथन है, फुल मैराथन है, वो लंबा है, हम्म. तो वो आप दौड़ते नहीं हो, यू जस्ट काइंड ऑफ ब्रिस्क वॉक और जॉग करते हो, एंड दैट इज द हम्म. कार्डियो। सो दोनों में है, वो कर तो गई की काम रहा है, Oh, but then you see the right. difference कि that is a Right, continuous right. workout for a longer period of time. So वही है, so that is why it is called aerobic in the presence of oxygen. So जब भी आप अगर उस ड्यूरेशन में फैट बर्न करने की बात कर रहे हो while you are training, so then हम्म. aerobic exercise. And when you want that कि आपका जो फैट बर्न है वो post exercise हो, then you need that strength training or that kind of training. So you need to combine both things. सिर्फ अगर आप Yeah. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे और कार्डियो करोगे तो दोनों का कुछ तो है, इश्यूज हैं, आपको दोनों को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा एंड यूज इट लाइक अ प्रॉपर टेक्निक और टूल। इट्स नॉट लाइक यू आर फॉलोइंग समथिंग कि आपको कार्डियो शायद कुछ लोगों को कम मेहनत की वजह से अच्छा लगता है, कुछ के अलग रीजंस हम्म. होते हैं, बट हम्म. ऑन द और कार्डियो के जैसे राजीव ने शायद पॉइंट आउट किया था कि प्लायोमेट्रिक जंप करो तो यू विल हैव हाँ, जॉइंट right. इश्यूज। आप सोचिए, हम्म. आप you are running on treadmill or you're walking on treadmill for 1 hour, and so how your joints are going to suffer, मतलब कितना bad effect है joints के लिए। Right, So right. it depends on like your health conditions, और आप choose wisely मैं ये कहता हूँ, and obviously you have to incorporate both things, तभी वो effective है। बिल्कुल डेफिनेटली सही बात। आपने जो क्वेश्चन पूछा वो परसेप्शन यहीं से आता है कि द अमाउंट ऑफ टाइम पीपल टेंड टू स्पेंड इन द जिम, they want to do something where they can do the calculation. You understand? Like Right. on a treadmill, you Mindset can यही होता है. see how many calories you are burning. So that हम्म. itself gives you, you feel like it is a motivation. Whereas if you go to the other option, that is totally opposite, है ना? उसमें if you Right. पहली बात तो हम कैलकुलेट अभी तक कर नहीं सकते हैं, बट अगर आपके पास स्मार्ट वॉचेज हैं या गैजेट्स हैं, आप तो कैलकुलेट कर भी पा रहे हैं, विच इज एन अप्रॉक्स नंबर, तो भी वो कभी भी उतना नहीं हो सकता है जितना सो कॉल्ड कार्डियो में होता है। तो Right. पीपल एंड अगेन आपका जो पिछला सवाल था, तो एक वो वाला स्टिग्मा भी अटैच है कि वेट ट्रेनिंग करेंगे तो या तो बहुत they'll become very huge and muscular, or maybe they'll injure themselves, or whatsoever reason। तो दोनों के जो रीजन है वो बहुत ही ज्यादा इम्प्रैक्टिकल है। आप देखिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भले ही वो अब थोड़ा सा प्रेवलेंट हो रही है बिकॉज ऑफ थैंक्स टू सोशल मीडिया कल्चर, बट आप देखिए, आप जब भी किसी फिजिकल थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, they always have these machines called leg extension या leg curl, इनके पास होता है। वो Right. क्यों होता है? Because people who are going there, most of them they are going in their 50s or 60s या उसके बाद भी। तो why do doctors or physical therapists they understand the importance of strength training? Because उनको पता है that's the best see, एक कहावत है, getting the most buck out of your getting the most bang out of your buck. So that is something which you can achieve from the other option, which happens to be weight training. तो इस Right. चीज को समझना कि आप जितना टाइम दे रहे हैं किसी भी एक्टिविटी को, आपको सबसे ज्यादा रिटर्न्स कहाँ से मिलते हैं। आपको एक ऐसी बॉडी मिल रही है जो देखने में अच्छी है, यू आर फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट, आप ज्यादा इंजरी प्रिवेंट कर सकते हैं, योर posture gets improved, your metabolism gets higher, which
even means that you can, go out and have fun every once in a while. So people need to understand कि जो दूसरा ऑप्शन है वो उनके हिसाब से शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जो लोग इसको एंजॉय नहीं करते हैं. बट हैविंग सेड दैट, इसको इतना ज्यादा करना भी नहीं होता है. इफ यू आर अ बिगनर, I would say twice a week, maximum 3 times a week, full body workout, बड़े movements, multi joint movements, जो एक ही समय पे बहुत ज्यादा मसल्स को टारगेट करते हैं. That is the best kind of workout you can do. And again, these workouts are not just workouts; these are daily practices. जो इससे पहले वाले पॉडकास्ट में Right. मैंने आपको समझाया था एक कि आप चीजों को पुश और पुल कर रहे हैं, नीचे बैठ रहे हैं, आगे झुक रहे हैं, ये आपके डेली फंक्शन है. तो आप उन्हीं को जब थोड़े से रेजिस्टेंस के साथ प्रैक्टिस करते हैं, ऑब्वियसली यू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ. एब्सोल्युटली Okay. करेक्ट. और एक बार को ना मैम, एक चीज मैं भी कहना चाहूंगा कि एक बार को हम ना वेट ट्रेनिंग को ना अलग हट, मतलब नहीं कर रहे हम वेट ट्रेनिंग. फॉर एग्जांपल, चाइल्डहुड जो है आजकल, पेरेंट्स ज्यादा बोलते हैं कि बच्चों को नहीं करना चाहिए वेट ट्रेनिंग. ओके, हम्म. उससे हाइट पे इफेक्ट पड़ेगा. Right. ओके, तो फॉर एग्जांपल, अ चाइल्ड इज डूइंग अ बॉडी वेट ट्रेनिंग. ओके, there are two examples. One is a sprint runner and another one is a marathon runner. If you see Okay. a sprint runner, his he will look like a muscular. For example, Mr. Hussein Bolt. वो बिल्कुल लीन मस्कुलर, उनका मसल मास बहुत हम्म. ज्यादा अच्छा रहता है. हम्म. लेकिन जो हम्म. अनदर साइड, इफ वी वॉच अ मैराथन रनर, वो बिल्कुल स्किनी रहते हैं. अगर हम्म. आप लंबे ड्यूरेशन तक, फॉर एग्जांपल, आप ट्रेडमिल पर आप एक एक घंटे तक वॉक कर रहे हो, कुछ भी कार्डियोवास्कुलर हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं लंबे समय तक, तो उससे हमारा जो कॉर्टिसोल लेवल है वो भी इंक्रीज होएगा, और साथ ही साथ में आपका जो मसल मास है वो भी डिप्लीट होएगा. Deplete तो होगा. एक परफेक्ट मेथड होना चाहिए, अपनी बॉडी को समझते हुए, सारी चीजों को देखते हुए. आपका उसमें सारी चीजें आ गई, बीएमआर, सबके पॉइंट्स आ गए उस चीज में, तो कस्टमाइज्ड चीजें होनी चाहिए. थैंक यू मैम. ओके. ओके. और मतलब आपके डिस्कशन के थ्रू मुझे एक और चीज समझ में और ध्यान में आई है कि एक और मिथ बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है आजकल की, लोगों ने इसको ट्रेंड बना दिया है कि अगर आपको वेट रिड्यूस करना है तो आपको पहले 10 मिनट कार्डियो करना है, फिर उसके बाद स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, और उसके बाद फिर अगर आप कार्डियो करोगे तो फिर ही वेट रिड्यूस होगा. तो क्या ये ऐसा होता है, या फिर कोई सेट पैटर्न है कि नहीं पहले कार्डियो करना है फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, या पहले स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है फिर कार्डियो करना है, मतलब हाउ टू गो अबाउट इट? देखिए मैम, दिस कि अगर वार्म अप एंड देन योर ट्रेनिंग एंड देन योर कार्डियो, मतलब ये एक बेसिक रूल है बेसिकली. एंड ये रूल आता है आपकी बॉडी के एनर्जी सिस्टम के उससे. ठीक है, हाउ योर बॉडी यूटिलाइजेस द एनर्जी जो वो खुद बना रहा है. तो ये बेसिकली ये रूल जो है कि वार्म अप हो गया. वार्म अप शुड बी लाइक 5 मिनट्स और 10 मिनट्स, एंड दैट इंक्लूड्स एवरीथिंग. मतलब आपका मोबिलिटी हो गया, डायनामिक स्ट्रेचेस, नॉट स्टैटिक डायनामिक स्ट्रेचेस, स्ट्रेचेस, बैलिस्टिक. डायनामिक स्ट्रेचेस, हाँ बैलिस्टिक स्ट्रेचेस, एंड अ लिटिल बिट ऑफ लाइक मे बी जॉगिंग, रनिंग. वो सब 5 से 10 मिनट में ही आपका वार्म अप हो गया. एंड देन यू डू योर प्रॉपर ट्रेनिंग, नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ ट्रेनिंग. अगर स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि स्पेसिफिकली थोड़ा स्ट्रेंथ पे ज्यादा आज बात कर रहे हैं, तो यू कैन डू योर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड देन यू गो फॉर अ कार्डियो. बिकॉज जैसे मैंने बताया कि आपकी बॉडी का एक एनर्जी सिस्टम है. सो इट स्टार्ट्स विद एटीपी फर्स्ट, देन इट कम्स टू राइट. क्रिएटिन, एडीपी, क्रिएटिन फॉस्फेट, एडिनोसिन देन डाइफॉस्फेट. यस. फिर एनारोबिक लैक्टिक एसिड सिस्टम, फिर यस. एरोबिक. सो फॉलोइंग दिस आप पहले पहले एटीपी को डिप्लीट करते हो, देन क्रिएटिन फॉस्फेट को डिप्लीट करते हो, फिर एनारोबिक जोन जो कि ग्लाइकोजन होता है उसको डिप्लीट करते हो, एंड देन दैट आल्सो ग्लाइकोजन फ्रॉम योर मसल. तो उसके बाद आपकी बॉडी फिर देन इट स्विचेस टू मतलब फैट. तो दैट ओके. इज व्हाई देयर इज अ रूल, अ लिटिल बिट ऑफ साइंस बिहाइंड दैट. एंड देन फिर ओके. अगेन ये एक जनरल रूल है जो कि फॉलो कर सकते हैं. बट देन अगर आप इंटरमीडिएट फास्टिंग के जोन में हो, ठीक है, तो उस हम्म. टाइम आपकी बॉडी के स्टेट में है, ठीक है. हम्म. हम्म. अगर आपने प्री वर्कआउट ले लिया है तो फिर आपकी बॉडी किस स्टेट में है, तो बेस्ड ऑन दैट यू कैन जस्ट स्विच. सो इट इज कंप्लीटली डिपेंड्स. बट
एक जनरल रूल अगर हम अपनी बॉडी का वो फॉलो करें, जैसे कि एक नॉर्मल रूटीन है एंड व्हाट बॉडी यूटिलाइजेस, तो यू कैन गो विद द नॉर्मल रूल ऑफ लाइक वार्म अप, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड देन कार्डियो। अदरवाइज लेट्स से अगर आप कीटो में ऑलरेडी है, तो आप कीटो में अगर ऑलरेडी है, दैट मीन्स योर प्राइमरी फ्यूल इज फैट, तो आप एरोबिक्स से स्टार्ट कर Right. लीजिए। सो इट्स जस्ट सिंपल एज दैट। So, if you have that understanding, or whom you are training under, he has the understanding of how your body is utilizing the energy, then you can go ahead with the plan. So, this is what. अभिषेक, इसका एक रीजन ये भी है कि Hmm. आई मीन वी आर ऑल सर्टिफाइड डॉक्टर्स। Hmm. जब हम इस चीज की पढ़ाई करते हैं तो हमें ये बताया जाता है कि एक अच्छे वार्म अप की क्या इम्पोर्टेंस है। बिल्कुल बिल्कुल। जो भी स्पेशली फॉर दोज पीपल हु आर इनटू एथलेटिक्स, आप किसी भी स्पोर्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो योर वार्म अप प्लेज अ ह्यूज रोल इन डिटरमाइनिंग योर सक्सेस। कार्डियो पहले आपको इसलिए भी नहीं करना चाहिए बिकॉज इफ यू ऑब्वियसली आप जब जिम जा रहे हैं तो आप पहले से बेटर, पहले से ज्यादा स्ट्रांग होने के लिए जा रहे हैं। और अगर आप शुरुआत के ही 30-40 मिनट्स एक ट्रेडमिल पे गुजार देंगे तो आपने Hmm. अपना जो मेजोरिटी ऑफ द फ्यूल है जिसमें वेयर यू कुड हैव परफॉर्म रियली एक्सप्लोसिव एंड पावरफुल मूवमेंट्स, वो तो आपने वहीं स्पेंड कर दिया। तो जिनका भी Right. गोल वेट लॉस होता है उनको यही समझाया जाता है कि आप वार्म अप करके पहले वो चीज कीजिए जिससे आपका मसल मास प्रिजर्व रहे, और उसके बाद अगर आपके पास टाइम है और आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको एक कैलोरी बर्नआउट वाला नंबर अचीव करना है तो उसको बाद के लिए रखें। लेकिन इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आप, क्योंकि आप सब कुछ जिम में ही नहीं कर रहे हैं, आप जिम के बाहर भी आपको अपने न्यूट्रिशन का, अपने कैलोरी इंटेक का ध्यान रखें। तो अगर आप उसके विद इन है, उस कैलोरी इंटेक टारगेट के विद इन आप सब कुछ प्लान कर रहे हैं, तो आप उस वेट ट्रेनिंग के बाद एक अच्छा सा कूल डाउन या स्ट्रेच करके घर भी जा सकते हैं। ये कोई मैंडेटरी नहीं होता कि आपको वो सो कॉल्ड कार्डियो परफॉर्म ही करना है। और अगर किसी को करना भी है तो देयर आर बेटर वेज टू डू इट। आप ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के बाद यू कैन गो फॉर अ 10 मिनट वॉक, विच ऑल्सो helps to regulate your blood sugar levels and Right. आपके इंसुलिन सेंसिटिविटी के लिए भी अच्छा है। Right. Right. So rather तो than जो हम depending लोग on some pill to regulate your blood sugar, you can just go for a walk. नेचुरली, Yeah. तो मतलब जो लोग यूजुअली करते हैं ना कि जाते ही साथ वेट लॉस, बिकॉज वेट लॉस दिमाग में इतना ज्यादा छाया रहता है, तो वो जाते ही साथ सबसे पहले ट्रेडमिल पकड़ते हैं। और मैंने देखा है यूजुअली लोगों को कि जिम में जाते साथ ट्रेडमिल ऐसा पकड़ते हैं कि फिर वो आधे घंटे 40 मिनट से पहले उतरते ही नहीं है, बिकॉज उनका ये रहता है कि अभी बिल्कुल जितनी एनर्जी है हम उतना दौड़ लेते, उतनी कैलोरीज बर्न कर लेते हैं, फिर हम आराम से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे, तो जो कि एक्चुअली गलत है। Yeah. बिल्कुल मैम। जी। एक एक मिथ ना, मतलब शायद, मतलब मैंने जो नोटिस किया है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि वार्म अप का मतलब लोगों के दिमाग में क्या चीज है, वार्म अप को लेकर के जिम में आए, ट्रेडमिल किया या क्रॉस ट्रेनर किया, एलिप्टिकल साइकिलिंग करी, कुछ भी करा। बॉयज को लेकर के, जो बॉयज का जो माइंड मेकअप है, आप लोगों ने देखा होगा भाई, जिम्स वगैरह के अंदर बॉयज आते हैं जिम में, they are not doing they are just doing the static stretches before starting the workout। तो उससे क्या हम्म। हो गया, स्टैटिक स्ट्रेचेस है वो हमें पोस्ट वर्कआउट करना चाहिए, जैसे कि राहुल सर ने बताया, कूल डाउन करते हुए। स्टैटिक हो गया या फिर पीएनएफ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो बिफोर वर्कआउट हमें डायनामिक करना चाहिए या फिर बैलिस्टिक करना चाहिए। अगर बिगनर लेवल पर है क्लाइंट या फिर इंटरमीडिएट लेवल पे है, तब हमें डायनामिक स्ट्रेचेस मूवमेंट्स परफॉर्म करने चाहिए। बैलिस्टिक एडवांस लेवल पे हम कर सकते हैं। तो उससे क्या है कि आपका ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा फास्ट होएगा। और स्टैटिक अगर आप पहले ही कर लोगे तो मसल है वो लेंथन हो जाएगा मसल। तो मसल जब लेंथन हो जाएगा, तब आपको, जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो, तो आपकी वेट लिफ्ट करने की कैपेबिलिटी है वो डाउन होगी। रेंज ऑफ ओके। मोशन इंप्रूव होएगा, रेंज ऑफ हम्म। मोशन इंप्रूव हो रहा है, लेकिन आप उतना अच्छा वेट लिफ्ट नहीं कर पाओगे। तो rather doing static stretches before starting your weight training, we must do the static stretches after completing your weight training. So that's the ओके। main thing. Before starting your workout, we must do the dynamic or ballistic stretches. तो उसमें क्या है कि आपकी मसल है वो शॉर्टन ही रहेगी,
और लेंथन नहीं होएगी मसल, और आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। थैंक यू। Okay, okay. और एक और बड़ा ही मजेदार मिथ, एक और चीज रहती है जो मुझे एज अ हेल्थ कोच भी, मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं और इस चीज के लिए बोलते हैं, एंड आई एम श्योर आपके पास तो 100% आते होंगे कि हमें ना सिर्फ बेली फैट कम करना है। हम तो है तो पतले, हमारे हमें और कोई वेट रिड्यूस नहीं करना है, बस हमें बेली फैट रिड्यूस करना है, या हमें बस आर्म्स का फैट रिड्यूस करना है। तो ये जो चीज होती है ना, स्पॉट रिडक्शन, क्या ये पॉसिबल है? मतलब ऐसा हो सकता है क्या कि नहीं, सिर्फ हम एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज करेंगे और बस हमारा बेली फैट गायब हो जाएगा? मतलब हाउ इज इट इवन पॉसिबल? नहीं, राहुल, वुड यू लाइक टू स्पॉट आंसर दिस? या श्योर। देखिए, जब मैंने पिछले पॉडकास्ट में एक बात बोली थी कि हमारे हमारे जो ट्रेनर्स हैं, या जो एक टिपिकल स्टाइल ऑफ कोचिंग है, उसमें भी थोड़े बदलाव की जरूरत है। वो जरूरत ये है कि हम जब भी किसी को जिम में एंटर करते देखते हैं, हमें ये लगता है कि आज मंडे है तो ये टेस्ट करेगा। तो ये वाला जो माइंडसेट है ना, थोड़ा सा इसको चेंज करने की हाँ। जरूरत है। और इसी माइंडसेट का एक ये सिम्टम है जो आपने बोला, कि अगर मैं चाहूँ कि मेरे सिर्फ आर्म से कुछ इंचेस कम हो जाए, चला जाए। ऑल हम्म। आई एम डूइंग इज बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स। आई मीन यू कैन डू द मैथ योरसेल्फ कि मैं बाइसेप्स या ट्राइसेप्स में ज्यादा कैलोरीज बर्न करूंगा, या फिर बेंट ओवर रोज और फिर बारबेल प्रेस में करूंगा। मतलब जहां पे मैं ज्यादा अमाउंट ऑफ कैलोरीज बर्न कर रहा हूँ, वो बड़ी मूवमेंट्स होंगी या छोटी मूवमेंट्स होंगी? ऑब्वियसली बड़ी मूवमेंट्स होंगी। तो ये जो नोशन है, ये वहीं से आया है। फिर चाहे वो ये सोचना हो कि मेरे पास बहुत सारा बेली फैट है और मैं 5,000 क्रंचेस करूंगा रोज, तो मेरे सिक्स पैक आ जाएंगे। अगेन, अगर आप क्रंचेस करेंगे तो सिक्स पैक आए ना आए, अगर आपकी बैक स्ट्रांग नहीं है तो इंजरी जरूर आएगी, दैट्स फॉर श्योर। कमर की बैंड और बच जाएगी। पॉस्चर भी खराब राइट। होगा। बिल्कुल। लेकिन वही 5,000 क्रंचेस वाला समय आप एक नया स्किल सीखने में लगाएं, जो कि डेडलिफ्ट है, जो कि रोइंग करना है, जो कि स्क्वाट करना है। ऑब्वियसली आप समय के साथ उसमें प्रोग्रेस भी करेंगे, तो आप खुद समझ सकते हैं कि आप ज्यादा अमाउंट ऑफ कैलोरीज कहाँ बर्न करेंगे। मैं आपको इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल देता हूँ। आप जिम में देखिए, बहुत सारे लोग डाइट फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बट फिर भी उनको बहुत समय लग जाता है इस सो कॉल्ड टारगेट को अचीव करने में, और कई बार तो वो राइट। कर भी नहीं पाते, और वो टारगेट होता है सिक्स पैक एब्स। और वहीं करेक्ट। आप जिम के बाहर आपके कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा हो, या आपके आसपास कोई रिक्शा पुलर हो, जो मैनुअल वाले रिक्शा होते हैं, साइकिल वाले रिक्शा, आप कभी उनकी फिजिक देखिए एंड लुक एट देयर फैट परसेंटेज। दे आर राइट। नॉट राइट। स्पेंडिंग देयर टाइम इन बिल्कुल। द जिम, है ना, वो लोग कैलोरी डेफिसिट में है। हालांकि उनके साथ प्रॉब्लम ये हो जाती है कि उनका न्यूट्रिशन लैक करता है, और वो ओवर ट्रेन करते हैं, उनको 8 घंटे फिजिकल लेबर करनी पड़ती है, 8-10 घंटे वटेवर। बट हमारे हम्म। पास उनसे सीखने को बहुत कुछ है, और आई मीन विदाउट हैविंग देयर ड्रॉबैक्स। तो आप समय वहां बिताएं, अगेन, जहां आपको ज्यादा रिटर्न्स मिल रहे हैं, एंड अगेन दैट हैपेंस टू बी द हार्डकोर स्ट्रेंथ मूवमेंट्स। ट्रेनर्स के लिए यही बोलना चाहूंगा कि हर क्लाइंट आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर बनने नहीं आ रहा है, या मिस्टर इंडिया, मिस्टर ओलंपिया बनने नहीं आ रहा है। आपके पास एक लेडी आ रही है, एक ऑफिस जाने वाला बंदा आ रहा है, जिसको दिन भर बैठ के काम करना है। मैं यहाँ पे एक छोटा सा इंसिडेंस डिस्कस करना चाहूंगा। मेरे पास एक क्लाइंट थी अभी कुछ समय पहले, जो थोड़ी सी ओबीज थी। इन्होंने मेरे साथ ओके। 2-2.5 महीने ट्रेनिंग की, एंड शी वेंट फॉर अ फैमिली वेकेशन। जब ये फैमिली वेकेशन पे गई, इनका बहुत ज्यादा वेट रिड्यूस नहीं हुआ था, थोड़े से इंचेस लूज हुए थे। बट व्हेन शी केम बैक, शी टोल्ड मी दैट उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उनकी टैक्सी खराब हो गई, एंड she could not, I mean, she was waiting for really long to get another one, but there was none available. And then she thought that why waste her time, and why not go by walk? And by her surprise, she did it herself with her daughter, हाँ। without having any pains in her knees or hips or ankles. और वो कह रही थी कि मैंने टीनेज के बाद शायद पहली बार ऐसा कुछ अचीव किया है, इन हर मिड 40s। तो दैट इज द काइंड ऑफ रिजल्ट पीपल वांट। एंड ये लोगों को समझना चाहिए कि आपकी लाइफ पहले से
इम्प्रूव कर रही है आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो वो इसी चीज के थ्रू कर सकती है। एंड सेम गोज फॉर ट्रेनर, कि आप उनको सिर्फ कॉस्मेटिक गोल्स ना दिखाएं, आप उनको रियलिस्टिक गोल्स दिखाएं। करेक्ट। पर जैसे अगर जिसको सिर्फ बेली फैट कम करना हो तो उसके दिमाग में से ये चीज कैसे हटाया जाएगा कि नहीं, स्पॉट रिडक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती है। अगर आप वर्कआउट करोगे तो ऑब्वियसली आपकी पूरी बॉडी पे फर्क पड़ेगा। तो हाउ डू यू एक्चुअली डील विद सच क्लाइंट्स? अगेन डू द मैथ। आप एक फुल बॉडी वर्कआउट कर रहे हैं वर्सेस आप 1 घंटा सिटअप्स या क्रंचेस कर रहे हैं, आप किसमें ज्यादा कैलोरीज बर्न करेंगे? ओके। सी बॉडी में आपके जो फैट है वो ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, ठीक है। देर आर बिल्कुल। सर्टेन राइट। एरियाज, देर आर टू काइंड्स ऑफ सबक्यूटेनियस एंड विसरल फैट, ठीक है। सबक्यूटे दोनों का अपना अपना रोल है, ठीक है। विसरल फैट इज अराउंड द ऑर्गन, तो उसका पर्पस ये है कि आपके ऑर्गन को प्रोटेक्ट करना, आपके टेम्परेचर को बनाए रखना ऑर्गन को, ठीक है। अभी क्या होता है जब आप ये सोचते हो ना कि एक जगह से फैट को हटा सकते हो, पहली बात तो एक जगह फैट है ही नहीं, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर योर बॉडी, ठीक। राइट। एंड इट राइट। डिपेंड्स ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ बॉडी टाइप कि वो कहाँ से रिड्यूस हो रहा है। सो मे बी फॉर लेट्स से मेरे फॉर माय एग्जांपल, मैं अगर एक्सरसाइज करता हूँ फॉर फैट लॉस तो प्रोबेबली कि मेरे बैक से पहले जाए या मेरे आर्म से पहले जाए। मान लीजिए राहुल कर रहे हैं तो मे बी उनके बेली से पहले चला जाए। बट हाउ एवर द फैक्ट इज the most stubborn fat is around the belly area. So बेली that is, एरिया। it राइट। takes a lot of time to get rid of those. So पहली बात तो ये जानना बहुत जरूरी है। एंड ये ग्रेजुअली लूज होता है, सो यू कैन नॉट फिगर इट आउट कि आपको कहाँ से रिड्यूस करेंगे। लाइक एज राहुल सेड कि राइट। आप सिर्फ अगर 500 कंसिस करो, सो दैट इज वेस्ट ऑफ टाइम। सो हम्म। उससे फैट कहीं पे भी नहीं जाने वाला, आप इंजर कर लोगे अलग से। एंड देन व्हेन यू टॉक्ड अबाउट स्पॉट रिडक्शन, क्योंकि दिस सी स्पॉट रिडक्शन यहाँ पे अभी क्या है, देर आर डिफरेंट टेक्निक्स और प्रोसीजर्स, ठीक है। जो कि बिकॉज आई हैव डील्ड विद द क्लाइंट अब्रॉड अपार्ट फ्रॉम इंडिया, सो देयर इट इज वेरी मच फेमस कि लाइपोसक्शन करा लेते हैं एंड दे हैव अ हम्म। बायरेट्रिक सर्जरी, ठीक है, जहाँ पे पेट का साइज छोटा हो राइट। जाता है, राइट। सो हाँ। उससे क्या होगा, पेट का साइज लिपोसक्शन। छोटा होगा, यू विल ईट कम, थोड़ा कम खाओगे। सो राइट। इन यस। दैट एंड अब ये मेरी बात को मार्क कर लीजिए कि इन अ कमिंग टाइम, आज से मे बी महीनों बाद या सालों बाद इंडिया में भी ये ट्रेंड आने वाला है, बिकॉज यू फॉलो टू मच ऑफ वेस्टर्न्स, ठीक है। एंड राइट। दिस इज राइट। द वर्स्ट थिंग। आपको वो इंस्टेंट रिजल्ट तो दे देगा, आपके बेली फैट चला जाएगा, आपके साइड से फैट चला जाएगा, थाई से चला जाएगा, जहां से भी आप चाहोगे सब चला जाएगा। मे बी 1 सेटिंग 2 सेटिंग कितने भी जो भी प्रोसीजर का हम्म। टाइमिंग हो उनका। बट द प्रॉब्लम इज बिकॉज आपने अपनी लाइफस्टाइल चेंज नहीं की है, so then it will come back, राइट। राइट। and that is not the राइट। natural way. When you go naturally with the natural process of the body, में हो सकता है 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 3 साल भी लग सकते हैं, ठीक है। बट जब वो आप फैट रिड्यूस करोगे सस्टेनेबली विद द नेचुरल प्रोसेस ऑफ योर बॉडी, so that would be much more healthier as compared to any kind of procedure or spot reduction kind हम्म। of thing. So हमें अपने दिमाग को पहले यहाँ पे लेके आना है कि जो भी हमें करना है उसमें it will take some time. It is not a 1 day process, neither a 1 month process. राइट। So it will take time. राइट। You will have to be motivated. You will have to be disciplined. हर चीज में आपको वो चीजें फिगर आउट करनी पड़ेंगी, चाहे खुद से चाहे किसी से पूछ के। बट यू हैव टू मेक दैट माइंडसेट कि वो एक दिन में, एक महीने में नहीं होने वाली है। सो देयर आर नो शॉर्टकट्स बिकॉज दिस इज योर लाइफ। एंड आपको ये सस्टेनेबल रखना है थ्रू आउट। इट इज नॉट लाइक कि आपने 2 महीने में अचीव कर लिया एंड देन यू स्टार्ट फॉलोइंग योर ऑल दोस थिंग एंड देन हम्म। अब आपको कुछ नहीं करना। सो थिंग्स विल स्टार्ट कमिंग बैक अगेन। सो ये हमें थोड़ा सा दिमाग में रखना है। एंड सो आप इस स्पॉट चीज को रिडक्शन ऐसे भी देख, इज हाँ, नॉट एट ऑल पॉसिबल नेचुरली। आप इस चीज ओके। को ऐसे भी देख सकते हैं कि लेट्स से, जैसे जेफी ने एग्जांपल दिया था, उनके क्लाइंट थे जो दिन में 7-8 कप चाय पी रहे जी थे। जी नाउ जी। राइट। दिस राइट। पर्सन, कैन यू इमेजिन, हैविंग द सेम बॉडी बट विद लेस अमाउंट ऑफ फैट, वो कैसा लगेगा? इट्स टेक्निकली नॉट पॉसिबल। जब आपके राइट। फैट लगता है तो आपको सिर्फ टमी पे ही फैट नहीं लग रहा है। अम, मैं इसको ऐसे समझाता हूँ, ऐसा नहीं होगा कि आपकी टमी फैटी है और आपके आर्म सलमान खान हम्म। वाले। इट्स हम्म। नॉट पॉसिबल। जब आपके फैट है तो वो सभी जगह
डिस्ट्रीब्यूट होता होगा है। बॉडी। इसके कुछ साइंटिफिक राइट। रीजंस भी हैं कि आपके कौन सी जगह पे कितने लिम्फ नोड्स है, आपका ड्रेनेज बिल्कुल। सिस्टम कैसे काम कर रहा है, वगैरह वगैरह। पर आप अगेन जब आप सिर्फ इस चीज पे ध्यान ना देके मसल बिल्ड करने पे ध्यान देते हैं, तो अगेन आप बेटर तरीका खोज लेते हैं उन एक्स्ट्रा कैलोरीज को बर्न करने। यानी कि जब आप मसल बिल्ड कर रहे हैं, तो जब आप रेस्ट कर रहे हैं तब भी आप ज्यादा कैलोरीज बर्न करते हैं, क्योंकि बर्न मसल कर। इज अ वेरी एक्सपेंसिव टिश्यू। उसको राइट। प्रिजर्व करने के लिए, उसको एब्सोल्युटली मेंटेन करने करेक्ट के लिए राहुल सर। आपकी कैलोरीज को लगातार खर्च होना पड़ता है। तो rather than spending time on doing crunches or doing so called cardio, आप थोड़ा सा मसल बिल्ड करें और फट दें। एक तो ना राहुल, वेरी ये ट्रू। भी लोगों का माइंडसेट हो जाता है कि जैसे आपने बोला ना कि कार्डियो करते हैं या 500 क्रंचेस कर रहे हैं या बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव जा रहे हैं, एग्जॉस्ट कर रहे हैं अपने आप को, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में होता है कि जितना अगर हम वर्कआउट करने आए जिम में और अगर हमारे पसीना नहीं आ रहा, हम स्वेट नहीं कर रहे हैं, तो मतलब हमारा वर्कआउट ही नहीं हुआ। एक ये भी बहुत बड़ा माइंड ब्लॉक हो जाता है कि नहीं, हमें करना ही करना है, दौड़ना ही है, 500 क्रंचेस करने हैं, और जब खूब पसीना आने लगेगा तब लोगों को लगता है हाँ आज वर्कआउट बहुत अच्छा हुआ है। बल्कि वहीं दूसरी जगह किसी ने अगर बहुत अच्छी डेडलिफ्ट करी होगी, बहुत अच्छा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सेशन लिया होगा अपना, और उस दिन इतना ज्यादा स्वेटिंग नहीं होगी, तो उनको लगता है आज तो हमने कुछ किया ही नहीं। ये भी बहुत ज्यादा मतलब लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है कि स्वेटिंग होगी तभी हमारा वर्कआउट इफेक्टिव है, वरना नहीं। जी बिल्कुल। बिल्कुल, क्योंकि लोग अपने डेली रूटीन को इस तरीके से प्लान कर चुके हैं, उनको इसी टारगेट को अचीव करना अच्छा लगता है कि मैं कितने कैलोरीज बर्न हाँ। करके आया। और वो वर्कआउट जिसमें मेरे को बहुत ज्यादा स्वेटिंग हुई है, उसके बाद मेरा वेट 2 किलो गिर गया अचानक से, फिर रात को मैंने हम्म। खाना खाया, फिर वो 1 किलो बढ़ गया, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे उसे 1 किलो को भी गिराना है। तो लोग इसी कैलकुलेशन में फंसे रह जाते हैं। राइट। और ये तो आप किसी भी आपने देखे होंगे आजकल बहुत सारे स्पा या फिर नेचुरोपैथी सेंटर्स भी होते हैं बहुत सारे, जो कहते हैं हफ्ते में राइट। 5 किलो गिराए। इसमें आप राइट। 5 किलो में कितना फैट गिरा रहे हैं या कितना वाटर गिरा रहे हैं एक्चुअली, ये आप बेहतर समझ सकते हैं कि इतनी तेजी से अगर आपका वेट रिडक्शन हो रहा है तो कितना हेल्दी होगा। एंड अगेन आप राइट। जब घर जाके थोड़ा सा पानी पी लेंगे या थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे बैठेंगे, तो योर बॉडी टेंड्स टू होल्ड वाटर। फिर नेक्स्ट डे वो आपको बोल देंगे कि अरे आपने कुछ खा लिया। So this हम्म। is now this is not how your body actually works. It takes your body. It takes for your body time to adapt, and then stick to the process. वही, क्योंकि तो ना लोगों को वही चीज लगती है कि अगर हमारा स्वेटिंग हो रही है तो हमारा वर्कआउट अच्छा हो रहा है, पर उनके दिमाग जी में ये चीज नहीं आती है कहीं ना कहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ना जो ट्रेनर्स होते हैं उनको ये समझाना चाहिए लोगों को, क्योंकि लोग पीपल आर अनअवेयर ऑफ दीज थिंग्स। तो इट इज जी द ड्यूटी ऑफ आवर कोचेस और द ट्रेनर्स कि वो उन्हें समझाएं कि नहीं, इवन इफ बिल्कुल अगर मैम। आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करी है तो भी जी आपको ये नहीं पता है कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने के बाद जब घर पर भी जा रहे हो ना, तब भी आपकी कैलोरीज बर्न हो रही है, आपका फैट बर्न हो रहा एग्जैक्टली। है, इपॉक। आपका मेटाबॉलिज्म के थ्रू हो रहा है वो। पर नहीं, उनको लगता है कि नहीं, हमें स्वेटिंग नहीं हुई है तो आज हमने वर्कआउट अच्छा नहीं किया है। देखिए तो मैम, ये कहीं ना मैं कहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये बहुत बड़ा मिथ है। हमें ना सबसे पहले समझना पड़ेगा कि व्हाट इज स्वेट। ठीक है, तो राइट। इसका एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। आपने हम आजकल सबके घरों में, अभी समर्स का टाइम है, एयर कंडीशनर सबके घर में अवेलेबल है। तो हमने देखा होगा हम्म। कि एयर कंडीशनर में हम जैसे देखते हैं जहाँ पे एग्जॉस्ट फैन रहता है, वहां से हम्म। वाटर जो होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स है, वो आपका बाहर आता रहता है। ठीक है। राइट। तो राइट। राइट। उस वाटर का क्या रोल है एसी को लेकर के? तो एसी के अंदर कंप्रेसर है। तो हम्म। कंप्रेसर के टेम्परेचर को, कंडेंसर के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए वो वाटर फ्लो होता है। तो सेम एज इट इज, हम ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के अभी जो हम इंडियन जो कल्चर है, वी आर इंडियंस, सबके बॉडी के अंदर हेयर्स होते हैं, स्किन पोर्स पर हेयर्स हम्म। वगैरह होते हैं। तो जब हम हम्म। वर्कआउट एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी हम करते हैं, तो वहां से स्वेट रिलीज होता है। तो जो हमारी बॉडी के अंदर जो वेन्स एंड वेसल्स है, वहां पे ब्लड का जो फ्लो है वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है।
जिससे कि थर्मोजेनिक इफेक्ट है वो क्रिएट होता है, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो रेज होता है। तब हमारी बॉडी में से जो पसीना जिसको हम बोलते हैं स्वेट, वो जब निकलता है उसका काम होता है बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना। आप कभी भी फील करोगे आपको पसीना आ रहा है, आप एकदम से कूलर के सामने, एसी के सामने या किसी फैन के सामने या खुली हवा में अगर आप खड़े होते हो तो आपको ठंडक सी महसूस होती है उस हाँ, राइट। पार्ट पर, बॉडी पार्ट पर। तो स्वेट का रोल समझना होगा, स्वेट का रोल होता है आपकी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना। अभी कोई इंसान है वो बहुत अच्छा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा है, एटलीस्ट 500 to 600 कैलोरीज बर्न कर रहा है, लेकिन उसको पसीना, उसको स्वेट नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका वर्कआउट जो है वो इफेक्टिव नहीं है। इफेक्टिव। आप फॉरेन में जाइए, वेस्ट जैसे फॉर एग्जांपल आपका जितनी भी कोल्ड कंट्रीज है, ठीक है, तो वहाँ का टेम्परेचर वैसा होता है, वो इतना अच्छा वेट ट्रेनिंग करते हैं, सारी चीजें करते हैं, उनको उतना स्वेट नहीं आता, तो क्या उनका राइट। वर्कआउट जो है वो इफेक्टिव नहीं है? तो ये करेक्ट। समझना पड़ेगा। और दूसरा मैम, जो अभी हम इससे पहले जो हम बात कर रहे थे कि स्पॉट रिडक्शन का, तो स्पॉट रिडक्शन में क्या रहता है कि हमारी, अगेन राहुल सर ने जो एक पॉइंट बोला था, ड्रेनेज सिस्टम प्लस कि आप कैलोरीज कितनी बर्न कर रहे हो, ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। अब ह्यूमन बॉडी में ना फीमेल और मेल अगेन अलग अलग बॉडी है, ठीक है, तो हमारी फीमेल बॉडी के अंदर लिम्फेटिक नॉड्स होते हैं जो कि हमारा ड्रेनेज सिस्टम हो गया, वो जो लिम्फेटिक नॉड्स होते हैं ना वो बहुत ज्यादा होते हैं, और मेल बॉडी के अंदर लिम्फेटिक नॉड्स कम होते हैं। तो मेल में क्या होता है कि जब इन्फ्लेमेशन, जब जब हम उल्टी सीधी चीजें खाते हैं, जो हमने पिछले पॉडकास्ट में डिस्कशन किया था अबाउट द क्रैप थिंग्स, अभी भी हमने किया था, अभिषेक सर ने जो कहा था कि हम कैफीन ले रहे हैं, रिफाइंड शुगर्स ले रहे हैं, प्रिजर्वेटिव्स ले रहे हैं, तो वो हमारे ड्रेनेज सिस्टम के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है। तो अ, उससे क्या होता है कि हमारा जो जो मेल जो बॉडी होती है, मेल बॉडी में ना मतलब स्टमक एरिया पर आपका फैट जो है वो ज्यादा डिपॉजिट होता है, और फीमेल बॉडी में क्या डिपॉजिट। होता है, एप्पल एंड पीयर शेप, देर आर टू टाइप्स ऑफ शेप, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ, वो होता है उनका बट हो गया, थाइज वगैरह जो होता है, वहां पे फैट एक्यूमुलेट ज्यादा होने लग जाता है, और इस एरिया पर भी फीमेल्स के राइट। यहाँ पर फैट राइट। एक्यूमुलेट होने लग जाता है। हाँ। तो हाँ। वो चीज है वही, जैसे कि अभिषेक सर ने ये चीज बोली, राहुल सर ने बोली कि आप कैलोरीज कितना ज्यादा एक्सपेंडिचर कर रहे हो, कैलोरीज का कितना कैलोरीज आप इनटेक कर रहे हो, इंक्लूडिंग ऑफ ऑल मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, और आपका वर्कआउट कितना इफेक्टिव है, तो ये सारी चीजें मैटर करती है। और फैट जो है वो ओवर, मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी एक जगह से आप फैट को आप हटा दोगे। लोग बोलते हैं कि स्टमक का जो फैट है वो चेस्ट पर आ जाएगा, ऐसे नहीं हो सकता। ओवरऑल जो होता है फैट वो घटता भी है, ओवरऑल ही बढ़ता है। तो बढ़ता है। ये मेरा एग्जांपल था। तो अगेन ये दूसरा दोनों जो अलग आपका टिश्यू है। क्वेश्चन है, दे बिल्कुल, बोथ आर डिफरेंट टिश्यू। फैट और मसल राइट। एक नहीं है। कुछ लोग ये टर्म भी हाँ यूज करते हैं हाँ अगेंस्ट जिम में हाँ कि आपका फैट मसल में कन्वर्ट हो जाएगा। बिल्कुल। प्लीज करके अब दिखाइए। जैसे कि राहुल सर ने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे फोकस करते हैं, राहुल सर, तो उसमें हम जैसे फॉर एग्जांपल हमने हैवी स्क्वाट्स लगाई, तो स्क्वाट्स इज अ कन्वेंशनल मूवमेंट, इट्स अ कंपाउंड नहीं, कन्वेंशनल पावर। मूवमेंट हो गया, पावर मूवमेंट हो गया, हम्म। कंपाउंड हम्म। मूवमेंट, पावर मूवमेंट हो गया। तो उसमें क्या हो जाता है कि उसमें ना आपका जो मसल है, मसल टीयर जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो मसल टीयर जो बहुत ज्यादा हो गया तो उसको रिकवर करने के लिए कैलोरीज चाहिए। ग्लूकोज इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर दी मसल्स। मसल्स को रिपेयर करने के लिए ग्लाइकोजन से ही तो रिपेयर होएगा, ग्लाइकोजन हो गया और साथ ही साथ में हम्म। आपका प्रोटीन हो गया। तो मतलब अब हम्म। लोग बाग क्या कर रहे हैं आजकल, प्रोटीन पे ज्यादा फोकस करते हैं, कार्बोहाइड्रेट पे फोकस नहीं करते हैं, इसलिए उनको कॉन्स्टिपेशन की शिकायतें ज्यादा होने लग गई है। तो प्रोटीन को एब्जॉर्ब करने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स का प्रेजेंस होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वही मेरे कहने का मतलब वो था, मैं कुछ ज्यादा बोल गया, सॉरी। तो नहीं, नहीं, बिल्कुल। नहीं। इनफैक्ट आपने बहुत अच्छा टॉपिक एक उठाया है जो कि मैं न्यूट्रिशन से रिलेटेड पूछना चाहूंगी कि जैसे अभिषेक, आप होलिस्टिक हेल्थ कोच है, राइट? तो ऑब्वियसली आप फॉलो करते हैं एक नेचुरल तरीके से किस तरीके से बॉडी को आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और हेल्दी लाइफस्टाइल को अपना सकते हैं। तो आपके पास भी ऐसे क्लाइंट्स आते होंगे ना, क्योंकि मेरे पास तो ऐसे आते हैं कि प्रोटीन कितना खाना चाहिए, अगर हम वर्कआउट नहीं कर रहे हैं तो हमें प्रोटीन नहीं लेना है या कितना लेना है। तो ये प्रोटीन को लेकर भी कुछ ज्यादा ही लोग ये हो चुके हैं कि नहीं, जब हम वर्कआउट करेंगे सिर्फ हम तब प्रोटीन खाएंगे, अदरवाइज हम प्रोटीन नहीं खाएंगे। तो हाउ डू यू एक्चुअली डील विद दिस? नहीं, हाँ, वही बात है कि
जैसे ये जो आपने बोला कि कितना प्रोटीन खाना है, पहले तो कितना तो बहुत बाद में आता है, वो तो शायद बहुत कम ही लोग पूछते हैं कि कितना खाना है। सबसे पहले तो हाँ, कि खाना ही है या नहीं खाना, मतलब क्यों खाना नहीं खाना, है कि एग्जैक्टली, राइट। वैसे तो मैं दाल चावल तो खा ही रही हूँ, या दाल चावल खा रहा हूँ, कुछ ना कुछ ऐसा थोड़ा बहुत चीजें खा रहा हूँ, तो प्रोटीन की क्या जरूरत है, मतलब ऐसी तो कोई जरूरत नहीं। बट अगर आप चाहे ट्रेनिंग कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, प्रोटीन इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर योर बॉडी, ठीक है। राइट, तो जैसे हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, तो इट्स प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, तो ये तीनों ही जरूरी हैं। ऐसा नहीं कि आपको फैट नहीं खाना है या कार्ब नहीं खाने हैं या प्रोटीन नहीं खाना है। यस, फिर प्रोटीन के सोर्सेज हैं। देन देयर आर, मतलब अगर नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज है नॉन वेजिटेरियन, सो इट इज नॉट नेसेसरी कि आप नॉन वेजिटेरियन सोर्स से लीजिए या वेजिटेरियन सोर्स से लीजिए, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। ओके, राइट, एंड राइट, डिपेंड ऑन द कंडीशन ऑफ द बॉडी, मतलब इन केस ऑफ स्पेशल पॉपुलेशन जहाँ पे कुछ चीजें हो जाती हैं, बट इट इज, मतलब आप दोनों तरफ से ले सकते हैं। इधर यू कैन गो विद नॉन वेजिटेरियन सोर्स और वेजिटेरियन, ऑल्सो विद द सप्लीमेंट्स भी वही सेम है। अब सप्लीमेंट्स क्यों लेना है, और सिर्फ ट्रेनिंग जो करता है वही लेगा या नॉन ट्रेनिंग वाला भी ले सकता है, या तो नॉन ट्रेनिंग वाला भी ले सकता है, डिपेंडिंग सेम। बिकॉज क्या होता है जब हम काम कर रहे हैं, बिकॉज हम घर पे तो सिर्फ बैठे नहीं है, मोस्ट ऑफ द पीपल आर लाइक नाउ डेज वर्किंग, वेदर दे आर वर्किंग फ्रॉम होम एज वेल, तो स्टिल दे आर वर्किंग। सो प्रोटीन रिक्वायरमेंट जो है डेली की सबकी, ठीक है, अब आपके अगर खाने से नहीं वो कंप्लीट हो पा रही है, देन यू विल हैव राइट, टू गो फॉर सप्लीमेंट्स। ओके, सो अगर आप खाने से पूरी कर ले रहे हो वो रिक्वायरमेंट, सो इट इज ओके। अगर आपकी खाने से नहीं हो पा रही, देन यू विल हैव टू टेक दैट प्रोटीन, बिकॉज अगर आप प्रोटीन नहीं लोगे, प्रोटीन इज द ओनली सोर्स वेयर इन योर मसल विल ग्रो, ठीक है। राइट, फिर आपके हॉर्मोन्स हॉर्मोन्स जो बनते हैं वो भी प्रोटीन से ही बनते हैं। सो हाउ आर यू गोइंग टू राइट, मेक अप विद दोज थिंग इफ यू आर नॉट टेकिंग एनफ अमाउंट ऑफ प्रोटीन, ठीक है। नाउ कम्स द कैलकुलेशन पार्ट, कि वो कैलकुलेशन, सो अगेन ये कैलकुलेशन भी कंप्लीटली डिपेंड करती है बॉडी टाइप एंड बॉडी टाइप, एक्टिविटी। लाइक आपका हम्म, वेट कितना है, ठीक है, आपकी एक्टिविटी लेवल्स कितने हैं। सो अगर जनरल एक जनरल दिया गया है, अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे, तो पर ग्राम पर किलोग्राम, 1 ग्राम पर किलोग्राम, वन इट्स अ ग्राम, वन, नॉर्मल, यस, इट्स अ नॉर्मल इट्स अ कैलकुलेशन नॉर्मल डन। रिक्वायरमेंट। हाँ, हम्म, बट ये अगर मान लीजिए किसी को कुछ भी नहीं पता है, इट्स फॉर दैट दोज पर्सन, फॉर बिल्कुल लेमैन के लिए है, कि अगर उनको कुछ भी नहीं, किसी से हेल्प नहीं मिल रही है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, so they can at least go by 1 gram वन per ग्राम kilogram पर of their बॉडी body, वेट, पर per बॉडी वेट। body weight. Now it can be substitute of like combination of different kind of things, because क्या होता है कि हम हर चीज सिर्फ, अगर वेजिटेरियन खा रहे हैं, सिर्फ मान लीजिए अगर मैं स्पेसिफिकली वेजिटेरियन हूँ, तो मुझे अलग अलग सोर्सेज देखने पड़ेंगे, कि हर एक फूड कंप्लीट सारे एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड नहीं होते, तो नहीं कुछ होते। लैक राइट, करते हैं, कुछ फूड लैक करते हैं कोई, सो यू हैव टू मिक्स एंड मैच दोज थिंग्स सो दैट वो कंप्लीट प्रोफाइल आपकी बॉडी में जा रही है, ठीक है। एंड देन हियर कम्स द रोल ऑफ सप्लीमेंट, कि अगर आप वो चीज नहीं खा पा रहे हो ड्यू टू एनी रीजन, आपका काम की वजह से, आपको बनाने की वजह से, डाइजेशन की वजह से, so you can switch to plant protein or whey protein, depends on what kind of things are available and is effective for your body. So protein is very much important, ठीक है, चाहे आप ट्रेनिंग ओके, कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, so you will have to start taking protein। अगर आप नहीं ले रहे हो, start taking it। राइट, राइट। और ऐसी राजीव ने जैसे कार्ब्स की भी बात करी ना, तो ये जी। भी एक बहुत ज्यादा मिथ है कि कार्ब्स और फैट्स नहीं लेने चाहिए, वो कहीं ना कहीं आपको हम्म, फैट गेन कर देते हैं, वेट गेन कर देते हैं। तो लोग जो है अपनी डाइट से, जैसे हम अभी डिस्कस भी कर रहे थे कि हम जी कीटोजेनिक डाइट पे चले जाते हैं, कार्ब्स ही जी। बिल्कुल हटा देते हैं कि चलो वेट रिड्यूस हो जाएगा। तो कितना सस्टेनेबल है ये कि नहीं कार्ब्स नहीं खाने चाहिए क्योंकि कार्ब्स से वेट गेन होता है, या फैट्स नहीं खाने चाहिए क्योंकि फैट से वेट गेन होता है? नहीं, तो इस ये कंप्लीटली सस्टेनेबल अप्रोच है ही नहीं, ठीक है। आप ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए कर सकते हो, कोई भी एक स्पेसिफिक डाइट हो गया फॉर अ शॉक देने के लिए अपनी बॉडी को, डिपेंड्स अगेन हम्म, कि क्या कंडीशन है बॉडी की, आप कर सकते हो, बट इट इज नॉट एट ऑल सस्टेनेबल, ठीक है। सस्टेनेबल वही है कि आप नॉर्मल एक फूड, एक हेल्दी लाइफस्टाइल और न्यूट्रिशियस फूड खाइए, जो कि आपकी जिसमें इंक्लूडेड हो, कार्ब्स हो, राइट, फैट हो एंड प्रोटीन हो, बिकॉज प्रोटीन जैसे मैंने बताया मसल के लिए है, हॉर्मोन्स के लिए, फैट आपके हम्म, अगेन हार्मोन के लिए, ठीक है, आपके ब्रेन के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके टेस्टोस्टेरोन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फैट्स, और इवन मोस्ट इंपॉर्टेंटली फैट
are important for fat soluble vitamins. Right, यस right, तो right. लोग विटामिन एंड मिनरल की टैबलेट तो खा रहे हैं, बट दे आर नॉट ईटिंग हाँ, हेल्दी फैट्स. So fats, how are right. those vitamin and minerals are going to be absorbed into your body if you're not taking enough amount of fat? ठीक है. तो अगेन तीनों ही जरूरी है. एंड जैसे राजीव ने पहले ही बताया था कि यू नीड कार्ब, मतलब यू नीड इंसुलिन प्रॉपर अमाउंट ऑफ, सो दैट दोज प्रोटीन कैन गो इनसाइड योर मसल, क्योंकि प्रोटीन Right, मसल में तभी जाएगी until unless you have that correct. insulin. बिल्कुल And Right, कार्ब कार्ब प्रोटीन एंड फैट तीनों आपके इंसुलिन लेवल को स्पाइक करते हैं, बट कार्ब ज्यादा करता है, प्रोटीन कार्ब कम ज्यादा करता है, और फैट बहुत कम करता है. बहुत कम सो करता है. तो इसलिए आपको, एंड प्रोटीन के साथ इज द कार्ब विच इज लाइक योर वेजिटेबल्स और सैलड्स आर द मोस्ट what you can say is the best combination to have with. Combination. मतलब if you are Yeah, taking any kind of non-vegetarian food, so the best combination with the non-vegetarian food is your salads or vegetables. You should never right, take, it is recommended. However, you can take, again, it is subjective, but it is never recommended to take rice or any starchy food. Apart from that, you can just use as much as vegetables with your meat. So that would be right, much right, more healthier. तो right. एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट इक्वली. बैलेंस्ड में अगर रहेगा तो एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट. अगर आउट ऑफ बैलेंस कार्ब जाएगा, अगेन इट इज गोइंग टू कॉज प्रॉब्लम. प्रोटीन जाएगा, इज गोइंग टू कॉज प्रॉब्लम. फैट ऑब्वियसली इज Cost गोइंग of. टू कॉज प्रॉब्लम. Right, प्रोटीन, बहुत हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं लोग. लोग सोचते हैं कि अगर मैं कार्ब्स बंद कर रहा हूँ, बहुत हाई प्रोटीन पे जाता है. देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड ग्लाइकोनियोजेनेसिस और बिल्कुल yeah, ग्लूकोनियोजेनेसिस. right, right, क्योंकि right. बॉडी तो आपकी उस पे चल रही है ना, वो तो कार्ब, मतलब प्राइमरी फ्यूल तो उसका कार्बोहाइड्रेट है, तो हम्म दैट विल स्टार्ट ब्रेकिंग प्रोटीन इनटू ग्लूकोज. तो उसका बिल्कुल मतलब क्या हुआ? So that is why when you take everything in balance, your body will function balanced in a balanced state. So Right, that is और why फैट्स भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है बहुत जरूरी है, आपका. बहुत जरूरी फैट है. में जैसे आपका हमारे इंडियन कल्चर में सैचुरेटेड फैट है, वो ज्यादा हम कंज्यूम करते हैं. ठीक है, हम्म. सैचुरेटेड फैट कोई बुरा फैट नहीं होता, अच्छा हेल्दी फैट होता है. तो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, लेकिन हम लोगों को ये नहीं पता कौन कौन से फैट्स लेने हैं, और उनका लेवल जो है वो बैलेंस्ड होना चाहिए. तो फैट्स के जो बेनिफिट है वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है. फैट कोई भी आपके जो लिपिड्स लेवल हो गए, आपके आपके हार्ट को हेल्दी रखने के लिए फैट्स का बहुत अच्छा मेजर रोल प्ले करता है. और right. साथ ही साथ में जो भी न्यू बॉर्न बेबी होता है, अ, उसके ब्रेन की जो डेवलपमेंट है वो फैट से ही होती है. Fat से होती है. कीटोन्स जो हो गए Right, आपके, तो right, ये चीजें तो हर चीज का आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट भी जैसे चार तरीके के हो गए. मतलब हम शॉर्टकट में बोल देते हैं सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, Complex. बट complex देर आर carbs. फोर टाइप्स. हाँ, तो देर आर फोर टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट: मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड. तो फॉर एग्जांपल मैं अगर दाल इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन. और जैसे कि अभिषेक सर ने बताया कि कोई भी प्रोटीन का जो अमाइनो प्रोफाइल है वो कंप्लीट नहीं होता, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल हो गए. तो इसलिए हम्म. हमें ना हर सोर्सेस से प्रोटीन लेना चाहिए. ठीक है, तो उससे क्या है, अमाइनो प्रोफाइल है वो बैलेंस्ड रहता है. तो जैसे पल्सिस हो गया हमारा, पल्सिस इज अ पॉलीसेकेराइड, स्लो डाइजेस्टिंग उसकी प्रॉपर्टी है. आपने कभी सुना है कि दोपहर में डिनर में आप ओट्स खाओ और ब्रेकफास्ट में आप पल्सेस खाओ? नहीं ना. तो Right, पल्सेस हम खाते हैं, उसका नेचर है वो स्लो डाइजेस्टिंग फूड है. तो उसका नेचर है, उसको हमें ड्यूरिंग स्लीप, मतलब बिफोर स्लीप लेना चाहिए. तो ये हो गया. तो पल्सेस के अंदर भी उसका भी एक अमाइनो प्रोफाइल है. तो पल्सेस को अगर हम रेदर देन ईटिंग विद चपाती, पल्सेस को अगर हम राइस के साथ में ले, विद द कॉम्बिनेशन ऑफ राइस, वो ज्यादा अच्छा रिजल्ट better होता आपकी बॉडी में देगा. जैसे कि अभी है. Right, अभिषेक सर ने कहा कि अगर आप नॉनवेज खा रहे हो, चिकन खा रहे हो, तो उसके साथ में ये सैलेड्स वगैरह veggies. होने चाहिए. बिल्कुल. और एक डाइजेस्टिव Right. एंजाइम हो गया जो कि आपका नेचुरली प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है. आपका ये क्या नाम था उसका, पपाइन करके होता है, वो आपका Papain. नेचुरली, हाँ, Papaya. नेचुरली उसमें पपाया के अंदर बहुत अच्छा होता है. तो ये Right, सब right. चीजें आपको पता होनी चाहिए कि क्या चीज कैसे करनी है. बेसिकली हर चीज को बहुत मॉडरेशन में खाना चाहिए. एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड ये ऑल्सो. बैड, जैसे कि मैं बोलती हूँ ना एग्जैक्टली. कि हेल्दी खाना खा रहे हो पर
सोच रहे हो कि नहीं हम उसको बहुत ज्यादा खा सकते हैं बिकॉज वो हेल्दी है, तो वो भी हमें कहीं ना कहीं नुकसान कर जाता है। और इसी चीज को लोग समझते नहीं है, वो मॉडरेशन की बात नहीं समझते। उनके दिमाग में ये चीज होती है कि ठीक है, अगर हमें वेट लॉस करना है या हमें कुछ भी करना है, तो फिर या तो वो क्या स्टार्ट कर देते हैं, मॉडरेशन में जाने की जगह वो क्या करते हैं, वो मील्स को स्किप करना शुरू कर देते हैं। दे स्किप द। मैम आपकी आवाज स्टार्ट करती थी। एम आई ऑडिबल नाउ? यस यस मैम, यस या नाउ यस। यू आर ऑडिबल। ओके। ओके। तो आप मैं ये बोल रही रिपीट। थी कि या तो वो लोग अपनी मील्स को स्किप करना स्टार्ट कर देते हैं, या तो फिर वो लोग बहुत ही लो कैलोरी डाइट लेने लगते हैं कि जितना कम हम खाएंगे उतनी जल्दी हमारे ऊपर रिजल्ट दिखाई देने लगेगा, जो कि वो भी बहुत गलत होता है। मैम राइट। जभी तो सबसे ज्यादा आप बिल्कुल सही कह रहे हो मैम, मील स्किप्स कर रहे हैं लोग बाग आजकल नाउ डेज। तो उसी की वजह से डायबिटीज वगैरह की जो कंसर्न है वो ज्यादा हो रहा है। हम्म। तो इसलिए मील स्किप नहीं करना चाहिए। तो प्रॉपर चीजें होनी चाहिए आपको अवेयर, वही अगेन की अब एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि लोगों को क्या चीज कैसे करनी है। वो चीज आप सही कह रहे हैं। और राहुल, ऐसी जैसे कि आप ट्रेनिंग करवाते हैं और आप ट्रांसफॉर्मेशन, तो फिर क्या कैन आप यू से ये, दैट अगेन? मैं ये बोल रही थी कि जैसे कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करवाते हैं अपने लोगों क्लाइंट्स का, तो इसी तरीके से जी। आपको भी ऐसे क्लाइंट्स मिलते होंगे जो कि बिल्कुल ही लो कैलोरी पे जाना चाहते हैं, तो आप इस हम्म। तरीके से क्लाइंट को किस तरीके से डील करते हैं कि नहीं, लो कैलोरी पे नहीं जाना है, स्टिल यू कैन ट्रांसफॉर्म, या फैट हम्म। डाइट्स पे नहीं जाना है, बट विदाउट गोइंग ऑन द फैट डाइट्स, जस्ट मेंटेनिंग एवरीथिंग इन मॉडरेशन, यू कैन ट्रांसफॉर्म ड्रास्टिकली। सी मैं अभी मैंने एक छोटी सी स्टेटमेंट कॉइन की थी रिसेंटली इंस्टाग्राम पे, एंड इट सेड कि योर अपीयरेंस इट्स जस्ट अ साइड इफेक्ट ऑफ हाउ यू ट्रेन एंड हाउ यू ईट, ओके। बिकॉज दैट इज समथिंग विच एक्चुअली हैम्पर्स योर परफॉर्मेंस। तो मैं यही चीज लोग समझाने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअली जब मैं ट्रेन करता हूँ अपने क्लाइंट्स को, तो मेरे पास एक शीट, एक चार्ट होता है, एंड आई प्रोवाइड देम विद गोल्स। और ये वही गोल्स होते हैं जो उनकी डेली लाइफ मूवमेंट से रिलेटेड है। तो जब वो टाइम टू टाइम उस गोल को अचीव करते हैं एक बैलेंस डाइट से, वेल बैलेंस न्यूट्रिशनल घर का खाना, सस्टेनेबल डाइट से, and they start seeing the results. So yeah, this is how I help my clients to achieve their goals. ओके। ओके। और एक और मेरा क्वेश्चन था अभिषेक से, बिकॉज ही इज इनटू एरियल योगा एंड साउंड हीलिंग एंड ऑल। तो आपसे भी एक मेरा सवाल था ये चीज कि लोगों को लगता है कि नहीं, अगर हम सिर्फ जिम कर रहे हैं, सिर्फ वर्कआउट कर रहे हैं जिम में जाके, तो ही हमारा एक हेल्दी लाइफस्टाइल बिल्डअप हो रहा है, या तो ही हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। और लोगों को लगता है कि योगा सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी के लिए होता है, और उससे कोई और फायदे या बेनिफिट नहीं होता है। आपका क्या माइंडसेट है इस पे, या हाउ डू यू बेसिकली डील विद सच थिंग्स, या आपका क्या कहना है कि नहीं, योगा इज इफेक्टिव और नॉट? Yes, not only yoga, मतलब all the other forms of exercise are equally effective. मतलब जैसे हम लोग पहले भी इस चीज पे बात कर चुके हैं, लाइक वी डिड फर्स्ट टाइम आपने बताया था 70-30 का रेशियो होता है, लाइक 70% इज न्यूट्रिशन एंड 30% इज योर वर्कआउट. नाउ वर्कआउट डज नॉट स्पेसिफाई only strength training or only yoga or only like pilates or only aerial yoga. तो वो एक जो 30% है that is not specific, or neither that 70% is specific like only keto diet, only paleo diet, or only Mediterranean. So it's like whatever you want, you can do anything. And ये जो भी आपका जो गोल है, ठीक है, it needs to be specific. Let's say फॉर मी, मेरा अगर मैं अपना गोल बताऊं तो मेरा गोल है कि आई नीड अ गुड फिजिक, मतलब आई आई नीड टू हैव माई गुड बिल्डअप, लाइक मेरा मसल्स अच्छे होने चाहिए, मेरे शोल्डर्स, मेरे बाइसेप्स, मेरे लेग्स सब अच्छे दिखने चाहिए. सो आई विल हैव टू ट्रेन माई सेल्फ इन टू जिम. बिकॉज अगर मैं चाहूँ कि मेरे बाइसेप्स ग्रो हो जाए, ट्राइसेप्स हो जाए, लेग्स ग्रो हो जाए, ग्रोज इन टर्म्स ऑफ मसल्स एंड साइज, सो आई विल हैव टू गो टू दैट जिम. वो योग से नहीं होगा. दैट काइंड ऑफ थिंग विल नॉट हैपन विद योग. बट अगर मैं चाहता हूँ, मेरा गोल है कि आई नीड अ व्हाट इज ए वेरी हेल्थी लाइफस्टाइल, I need the strength in my muscle, I need flexibility,
ठीक है, आई नीड गुड कोर स्ट्रेंथ, तो इट कैन बी अचीव विद योग, इट कैन बी अचीव विद एरियल योग, राइट। सो हर चीज का अपना अपना बेनिफिट होता है। इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर गोल, कि आपका गोल क्या है, उसके ऊपर आप फिर Okay. स्पेसिफाई कर सकते हो। लाइक लेट्स से कि किसी का गोल है कि दे नीड टू बी जस्ट लिटिल बिट मोर कामर, ठीक है, उनका थोड़ा माइंड और रिलैक्स रहे, उनकी फिजिक अच्छी रहे, दे दे शुड लुक इन प्रॉपर शेप, गुड कोर स्ट्रेंथ होनी चाहिए, गुड मसल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, गुड फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, सो दे शुड गो फॉर योग। दैट विल हेल्प इन अचीविंग माइंड बॉडी कनेक्शन। तो वो ज्यादा उस स्टेट में जाएंगे। अब जैसे किसी को चाहिए कि जिसको बॉडी अच्छी बनानी है, दे नीड टू लुक गुड, दे नीड टू हैव गुड सिक्स पैक, Hmm. गुड legs, good biceps and good shoulders. So we'll have to go and train there as well. तो थोड़ा हमें समय वहां पे भी देना पड़ेगा। So it completely depends on goal, and कोई भी एक्सरसाइज, फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज आप चूज करिए, they will help you to achieve certain kind of things. So the basic things are Okay. strength, flexibility, core strength. These are the basic things. वो तो आपको कि Okay. हर चीज से मिलेगा, ठीक है। इवन इफ द पर्सन इज जस्ट गोइंग फॉर स्विमिंग ऑल्सो, और इफ इज प्लेइंग बैडमिंटन और टेनिस, ठीक है, तो वो ये सारी चीजें तो उसको वैसे भी मिल रही है वहां से भी, वो उसका भी स्ट्रेंथनिंग हो रही है, उसकी कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस बढ़िया हो रही है, उसकी कोर स्ट्रेंथ अच्छी हो रही है। बट फिर अगेन वही कि आपका क्या गोल है, क्या करना चाहते हो, यू हैव टू चूज अकॉर्डिंगली। Right. Right. अभिषेक, मेरा एक Nice. सवाल है That. यहाँ पे। आई एम हाँ सॉरी, जी। मेरा एक सवाल है यहाँ पे। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, किसी का कोई परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल है, एंड क्योंकि आप यू नो मेडिटेशन, साउंड हीलिंग और नो इस तरीके की चीजें भी सिखाते हैं, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि अगर किसी का एक परफॉर्मेंस बेस्ड गोल है, चाहे वो जिम में हो, चाहे वो ट्रैक एंड फील्ड में हो, कहीं पे भी हो, तो वहाँ पे जो आपके सर्विसेज हैं वो कैसे हेल्प हेल्प कर सकते सी देखिए, जैसे कि अगर आप परफॉर्मेंस की बात जब हम कर रहे हैं, तो परफॉर्मेंस हर एक फील्ड में होती है, चाहे इधर इट कुड हैं? बी athletes, it could be a gym goer, it could be a person who is more into studies, कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, चाहे वो बॉडी बिल्डिंग की तैयारी कर रहा है, किसी पे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है, फॉर दैट मैटर्स, ठीक है। तो उसमें क्या एग्जैक्टली। होता है, आप हम लोग फिजिकल एस्पेक्ट पे बहुत ज्यादा काम करते हैं। फिजिकल एस्पेक्ट इन द सेंस कि मतलब जैसे मान लीजिए आप बॉडी बिल्डिंग की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप अपने पूरा फोकस आपका रहेगा कि आपकी ट्रेनिंग अच्छी हो रही है, आपकी रिकवरी अच्छी हो रही है, आप प्रॉपर डाइट फॉलो कर रहे हैं, गुड न्यूट्रिशियस फूड, प्रॉपर सप्लीमेंटेशन, एवरीथिंग इज टॉप नॉच, मतलब टॉप पीक पे है, नॉच। आपका डिसिप्लिन बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है। बट एट बैक ऑफ द माइंड ये सारी चीजें होने के बावजूद आपका स्ट्रेस लेवल कैसा है, वो कैसे आप मेजर कर रहे हैं, उसको कैसे टैकल करें, क्योंकि बिकॉज स्ट्रेस इज नॉर्मल थिंग, ठीक है, वो सबको ही है सबकी लाइफ में। बट Right. हाउ यू डील विद दैट स्ट्रेस इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम सारी चीजें फिजिकल लेवल पे देखते हैं और करते हैं, क्योंकि बिकॉज यू आर ट्रेनिंग, दैट इज ऑल्सो फिजिकल लेवल, ईटिंग, दैट इज ऑल्सो फिजिकल लेवल, उसका जो इम्पैक्ट आपके एनर्जी लेवल पे पड़ता है वो कैसा है, और उसको आप कैसे मेंटेन करें, क्योंकि आप बेसिकली एनर्जी पे डायरेक्टली तो काम नहीं कर रहे, आप डायरेक्टली तो Hmm. फिजिकल पे काम कर रहे हैं, एंड एट द बैक ऑफ द थिंग वो जो चीजें हो रही हैं, जैसे क्योंकि आप जब ट्रेनिंग कर रहे हो तो आपके हॉर्मोन्स भी रेगुलेट हो रहे हैं, हालांकि आप फिजिकल चीजें कर रहे हो बट वो इंटरनली भी रेगुलेट हो रहे हैं, आपको डोपामाइन, जी। सेरोटोनिन ये सब भी रिलीज होता है, तो आपको अच्छा भी Hmm. फील होता है, यू फील रिवॉर्डेड, सो ऑल दोस थिंग हैपनिंग एट द बैक ऑफ, बट वो स्ट्रेस को कैसे कम करना है, सो देयर कम्स द पार्ट ऑफ मेडिटेशन हो गया, या योगा Meditation. हो गया, or any हम्म। kind of healing, not only sound healing, it could be any kind of healing where we see how your energy, where are the blockages in the energy channels में कहाँ blockages हैं, क्यों ऐसी चीजें हो रही हैं कि आपका माइंड वो फोकस नहीं कर पा रहा। सो विद द हेल्प ऑफ दीज हीलिंग मेथोडोलॉजीज, विद द हेल्प ऑफ योर मेडिटेशन और ब्रेथ वर्क, हाउ कैन यू रिलैक्स योर माइंड, सो आपका जब दिमाग स्थिर रहेगा, हम्म। आप और ज्यादा आप फोकस कर पाओगे, और अपने पाथ पे मतलब फोकस्ड रहोगे, you will be more able to put yourself into more disciplined way rather than getting scattered from the Right. path, क्योंकि obviously कि होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप सेम चीजें कर रहे हो, बिकॉज कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन इज डूइंग सेम थिंग रिपीटेडली रिपीटेडली, एंड वो एक पॉइंट पे आके आदमी वो गिव अप वाला मोड आ जाता है व्हेन ही डजंट सी द रिजल्ट, और वहीं से वो चीजें Right. शुरू, तो वो स्टेट ऑफ
जो मेंटल स्टेट है उसको हैंडल करने के लिए there comes the healing. So when you are taking the help of all these alternative therapies, meditation, healing, तो कहीं ना कहीं और आपकी परफॉर्मेंस को एनहांस कर देता है, आपकी ट्रेनिंग को एनहांस कर देता है, आपके फोकस को बढ़ा देता है, कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है, रिकवरीज को बढ़ा देता है. सो इट्स अ विन विन सिचुएशन. सो व्हाई नॉट टू ऐड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग. तो दैट इज व्हाई मैं हमेशा से ये बोलता रहा हूँ. इसीलिए मैंने आपसे पूछा, बिकॉज जी आने वाले समय में जो भी हमारे पॉडकास्ट को देखेगा, काफी सारे ऐसे जी लोग होंगे जो किसी फिजिकल गोल की Right. तरफ अप्रोच कर रहे हैं, या फिर बिल्कुल. जैसे लोग भी होंगे, जैसा कि आपने बोला कि एग्जाम की तरफ उनका कोई गोल है. तो अम, हमारे जितने भी चेक्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जब हम जी जिम में होते हैं तो हमारा ईट स्लीप ट्रेन, वो तीनों चेक्स होने के बावजूद कई बार ऐसा होता है कि हम लोग लॉस फील करते हैं या कंफ्यूज फील बिल्कुल करते हैं. तो ऐसे हालात में क्या चीजें हेल्प कर सकती हैं, जो कि आपने क्लियर भी कर दिया. बिल्कुल. या तो Right. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच. Yeah, I think ये जो सेशन था काफी ज्यादा इंसाइटफुल था. थैंक्स टू ऑल थ्री ऑफ यू. आप लोग अपनी फील्ड में काफी एक्सपर्ट एंड क्वालिफाइड है, एंड आई एम श्योर कि ये इंसाइट्स दिए हाँ. काफी यूजफुल होंगी. एम आई ऑडिबल नाउ? यस. या सो मैं वही बोल रही थी कि जो भी आप लोग ने आज की इंसाइट्स शेयर करी है वो काफी ज्यादा यूजफुल होंगी. सो थैंक्स टू यू, ऑल थ्री ऑफ यू. एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक माई व्यूअर्स, जो लिसनर्स हैं, फॉर ट्यूनिंग इन टू आवर पॉडकास्ट चैनल. और मैं फिर से कहूंगी कि प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर पॉडकास्ट चैनल एंड ऑल्सो टू आवर इंस्टाग्राम हैंडल्स. जो भी हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका हैंडल का लिंक दिया होगा. सो प्लीज डू सब्सक्राइब सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी ऑफ आवर अपकमिंग एपिसोड्स. And so I just hope कि हमारा next episode बहुत जल्दी आएगा, and we bring more value to you all. So thank you so much again. Thank you for Thank being you. there. Thank you, Thank Sam, you, for having everyone. us. Thank you. Yeah. Okay.